You see that one, the top red one of the top Eclipse dairy farm in Pakistan, in Australia. It's from that farm. I know this cattle very well actually. This one. If you see, this is from Eclipse as well. There's some other black on the back is from Moxie cattle. The jersey I see here with the big udder, this is from Brook Bora. Assalamu alaikum, Pakistan farmers. My name is Nasser Sultan. I'm the managing director for Nasna International, and we are the exporter of cattle from Australia. And right now we are working with Rivergen and Genesis, and for exporting cattle and selling in Pakistan. This is my first visit into Pakistan after the January 2026 shipment. And right now I'm standing in Genesis Dairy Farm, which is located in Harappa, central Punjab in Pakistan. This is my first visit to this farm, even though I know the owner of this farm, Malik Mudassar. I know him for a very long time, but this is the first time visiting his farm. And farm is good farm, I can't complain. But I'm very surprised to see the pool of cattle standing in this farm. Every single cattle, there is nothing commercial here. Every single cattle here is all from top genetics in Australia. For example, I tell you, you see that one, the top red one of the top Eclipse dairy farm in Pakistan, in Australia. It's from that farm. I know this cattle very well actually. This one. If you see, this is from Eclipse as well. There's some other black on the back is from Moxie cattle. The jersey I see here with the big udder, this is from Brook Bora. And you see red Holsteins and red Aussie Reds, those ones are from the top red Holstein breeder in Australia. They're from Tasmania. So each and every cattle I can say which genetics they are from. And I'm very surprised to see, even though it's about 250 cattle, something like that. 250 cattle, each cattle are hand-picked from top genetics in Australia. And I'm very surprised to see that. If any of the farmers or any Australian exporters or any other Australian officials, bureaucrats comes to this farm, they'll be surprised to see that. All the best in one place. That is Genesis Dairy Farm. I'm very happy to see that. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान डेयरी फार्मर्स। जैसे कि आपको पता है कि नासिर ने आपको बताया, हम दोनों नस्ना इंटरनेशनल के डायरेक्टर हैं और यहाँ पे पाकिस्तान इस टाइम पे आए हुए हैं। शिपमेंट डिलीवर हो चुकी है और इस टाइम पे हम यहाँ पे हड़प्पा में जेनेसिस डेयरी, आप कह सकते हैं जेनेसिस डेयरी जो है ये यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन जेनेटिक्स के ऊपर फॉर्म करती है और ये हड़प्पा सेंट्रल पंजाब के अंदर है। इसके जो ऑनर हैं वो मलिक मुदस्सिर साहब हैं और इनके साथ हम काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं। लेकिन ये हमारा, जैसे कि नासिर ने कहा, कि पहला विज़िट है इस फार्म के ऊपर। और जैसे कि आपको हमने विज़िट किया, ये अंडर डेवलपमेंट फार्म है, इस टाइम पे इसने ग्रो करना है और इंशाल्लाह वंस ये किसी न किसी टाइम पे इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट डेयरी फार्म होगा जिसमें ऑस्ट्रेलिया के बहुत टॉप जेनेटिक्स आप देखेंगे। जैसे कि इस शिपमेंट में जो कैटल आई है ये हमारे बैक पर खड़ी हुई है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। लेकिन उससे पहले इनके जो डेयरी फार्म के ऊपर जो कैटल की वैरायटी है वो ऑस्ट्रेलिया के टॉप जेनेटिक्स में से है। काफ़ी टॉप बीपीआई आप कह सकते हैं, टॉप परफॉर्मिंग कैटल है इस टाइम पे और ये बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है। इसके बाद मैं चांस दूंगा जो यहाँ के वेटनेरियन हैं जो इस फार्म को पूरे कम्प्लीटली तरीके से अब्दुलरहमान साहब मैनेज कर रहे हैं, तो वो इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे कि कैटल परफॉर्म कैसे कर रही है। अब आप जैसे कि नासिर ने बताया कि ये आप जैसे रेड वाली कैटल देख रहे हैं बैक के ऊपर, इसको ये इक्लिप्स जेनेटिक्स की कैटल है जो कि ऑस्ट्रेलिया का वन ऑफ द टॉप जेनेटिक्स में से एक जेनेटिक पूल है जो कि यहाँ पे आपके साथ खड़ा है। उसके साथ अगर आप ये ब्लैक वाली कैटल देखें तो ये भी इक्लिप्स की है। उससे आगे ब्लैक एंड वाइट वाली आप देखेंगे तो ये मॉक्सी कैटल की कैटल है। इसके अलावा जो जर्सी इससे थोड़ी आगे है वो ब्रुक बोरा जर्सी से है। उसके अलावा वहाँ पे आगे रेड होल्स्टीन भी है वो, और उसके अलावा रेड ऑजी इलाबारा
ये सारे के सारे सबसे टॉप जेनेटिक्स हैं, टॉप परफॉर्मेंस है। हर कैटल की डिफरेंट क्वालिटी है, डिफरेंट जेनेटिक्स हैं। लेकिन एक टॉप फ्रेम से एक मीडियम से स्लो में आप जाके देख सकते हैं कि जो हर पूल है वो किस तरीके से इकट्ठा किया गया है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया के जेनेटिक्स का जेनेसिस डेयरी जो है एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। इसमें आपको एक पूल ऑफ जेनेटिक्स मिल रहा है, पूल ऑफ वैरायटी है, जिससे आगे जो है हर डेवलपमेंट होगी। और इंशाल्लाह आप इसको यहाँ पे एक एग्जाम्पलरी फार्म देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो भी ऑस्ट्रेलिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये जो भी लोग हमारी इस प्रेजेंटेशन को सुन रहे होंगे, इवन दो फार्म अंडर डेवलपमेंट है, लोकेशंस चेंज होती रहती हैं, लेकिन जो डेयरी के पूल्स हैं वो हमेशा ग्रो करते रहते हैं और जो जेनेटिक्स हैं वो टॉप ब्रीडिंग जेनेटिक्स सिलेक्ट होके आते हैं। अब ये तो ऑस्ट्रेलिया की जेनेटिक और जो शिपमेंट आई है, ये उसकी कुछ एग्जांपल्स हमने आपको दिखाई हैं। इसी तरह काफ़ी सारी कैटल पीछे लगी हुई है जो कि काफ होने वाली है, जो काफ कर चुकी है, कुछ मिल्किंग में है। अडर फॉर्मेशन आप देख लें, हर कैटल की, हर वैरायटी की आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा उसका अडर इक्लिप्स जेनेटिक्स का आप देख सकते हैं। यहाँ पे also Eclipse, these two Eclipse. दैट इज ऑल्सो एक्लिप्स। इसके साथ जो आगे है ये मॉक्सी कैटल है। तो इनके अडर फॉर्मेशन आप देखें किस तरीके से फ्रेम है, स्ट्रक्चर है, एक बड़े फ्रेम से मीडियम से थोड़ा सा लार्ज, इन मिड, और ये सारा हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो जहाँ पे वैरायटी की, गारंटी की, एश्योरेंस की, जेनेटिक्स की बात आती है, तो ऑस्ट्रेलिया के जो टॉप वैरायटी ऑफ जेनेटिक्स आप कह सकते हैं, टॉप ब्रीडर्स की जो जेनेटिक्स आप कह सकते हैं, वो आपको जेनेसिस डेयरी से गारंटी है, जिसकी अभी हमने एश्योरेंस भी की है और हमने सप्लाई भी की है। तो अब मैं ये इनके जो फार्म मैनेजर हैं अब्दुल रहमान साहब, मैं इनको माइक देता हूँ ताकि ये फर्दर बता सकेंगे जो कैटल की परफॉर्मेंस है इस टाइम पे काफ करने के बाद वो किस तरीके से चल रही है। तो इंशाल्लाह ये आपको एक्सप्लेन करेंगे। As a farm manager of Genesis, I think you have a big challenge in front of you. Seeing the type of cattle provided to you, I personally believe you have a big challenge because you're not given some random cattle from Australia. Genesis is having all the top genetics from Australia. So my first question is, how do you feel about that? यस, अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम फार्मर्स। सबसे पहले मैं नासिर भाई, नवीज़ भाई को जो है जेनेसिस डेयरी फार्म पे वेलकम करता हूँ, पाकिस्तान में वेलकम करता हूँ। और जैसे नासिर भाई ने बताया, ये हमारे पास जो एनिमल्स हैं ये टॉप जेनेटिक्स के एनिमल्स हैं। लीड हर्ड जो ऑस्ट्रेलिया से हैं वहाँ से ये एनिमल्स इंपोर्ट हुए हैं। जो सबसे बड़ा हमें डेफिनेटली एनिमल्स की जब ट्रांजिशन होती है तो उसमें फीडिंग का चैलेंज और एनिमल्स की जो स्पेस लोकेशन चेंज होती है, जगह चेंज होती है, तो उससे एनिमल डिस्टर्ब होता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह हमने इन दोनों चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया। एनिमल्स ने भी हमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। हमने जब फीड ट्रांजिशन की, एनिमल्स ने बहुत स्मूथ ट्रांजिशन की है, यानी पहले रोड ग्रास है वगैरह से साइलेज फीड और बंडा फीड, देन क्लोजअप की फीड, और अब मिल्किंग में एनिमल्स आ चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो फीडिंग से हवाले से जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, मेटाबॉलिक इश्यूज आते हैं, वो हमें कोई एज सच फेस नहीं करना पड़ा। डेफिनेटली इसमें हमारी मैनेजमेंट है, एनिमल्स का जो है वो लीड नेट्स के एनिमल्स हैं, तो उनका भी एनिमल्स भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और अभी जो इस यहाँ का टेम्परेचर है, आपको पता है कि ये 45 तक जा रहा है, तो बट एनिमल्स अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी बड़े अच्छे कंफर्टेबल जोन में हैं, अच्छा मिल्क दे रहे हैं हमें। Okay, Abdul Rahman, when I say that you have a variety of genetics here, Yes. top genetics, but variety is more here. Yes. So each cattle will have different behavior because they are from different genetics actually. Yes. So how do you manage that, that different animal behavior because it's not from a same farm, different genetics. Yes. How do you manage that behavior Yes. in the animal? डेफिनेटली नसर भाई, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि ये एनिमल्स जो है डिफरेंट ब्रीड से हैं और डिफरेंट जीन पूल से हैं। हर एनिमल्स की अपनी रिक्वायरमेंट है, तो हम हर एनिमल्स को उसकी इंडिविजुअल एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से डील कर रहे हैं। जर्सी डेफिनेटली उसकी फीड रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, Yes. और फ्रीजियन एनिमल्स है उसका डेफिनेटली उसका फीड जो है वो डिफरेंट है, उसकी मिनरल्स की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, और उसकी जो कंसनट्रेट है उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट। तो रेड एनिमल्स हैं और उसका जो है वो टेम्परेचर के साथ जो मेंटेनेंस है वो फ्रीजियन की निस्बत बेटर है, तो हम फीड जो है उसको एडजस्ट कर रहे हैं एनिमल्स की
डेली नीड्स के हिसाब से कि हमें एनिमल्स क्या डिमांड कर रहा है, हम उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं ताकि हमारा एनिमल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्टेबल हो और हमें ज़्यादा जो है वो मिल्क प्रोड्यूस करके। Okay. And you are having calving because our shipment came early Yes. in January, Yeah. and they're pretty much 5 to 6 months pregnant at the time. So Yes. you're calving in June now, June, actually. yes. So you think that is a right time for the animal to calve in Pakistan? नो डाउट ये जून का महीना जो है पाकिस्तान में चैलेंजिंग होता है, इसमें काविंग जो है वो बहुत डिफिकल्ट You're होती telling है। June is tough. Yes, So there are yes. animal came after us going to calve in August. What do you say about that? You're telling June is a problem? yes. It's going to be June, July is going to be even tougher then. हाँ Ah, okay. They have a major challenge ahead of them. यस So among the June, July, August, you think June is the most preferable among the 3 months? यस Yeah, June is better. हाँ क्योंकि You- उसकी वजह ये है कि जुलाई और अगस्त में जाके हबस का ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा हो जाता है। very बट tough. जून एज कम्पेयर टू जुलाई बेस्ट है। The latest should be June. यस So we have done our job pretty well. Yes. June, targeting Yes. June delivery is okay. If any other shipments got the cattle which is going to deliver after this, they're going to be in a major problem. That's what you're Yes, saying, yes, right? definitely, Okay. definitely. May Allah help them, inshallah. Inshallah, Okay, no problem. inshallah. Thank you for Thank you so hosting much. us. Thank And I would love to visit again. Yes. And I'll come with see that, Thank you for your visit at Genesis Dairy Thank you Farm. so much. Thank you for that. Cheers. And thank you. Bye.